Hi friends, good evening. I'm Dr. Ashutosh Gupta and I'm a consultant fetal medicine. So today we are going to talk about or we are going to have a series on the fetal kidneys. Okay, so there could be some subset of abnormalities that affects the both the kidneys. So we do have a few cases. So we are going to do a series. So this is the first case in which we are talking about a partial PUV. Okay, so meaning thereby that everybody knows it that the fetal blood gets filtered out through the kidneys, and therefore the kidneys they filter the blood and make some urine, and through the ureter that urine gets into the urinary bladder, and therefore the baby pees into the pool, which is called as an amniotic fluid, and baby swallows this amniotic fluid. So this cycle goes on, right? So, meaning thereby that the baby is able to swallow and pee. So, meaning thereby that the cycle happens for 2.5 and 3 times every day. So, meaning thereby that the baby swallows the amniotic fluid 3 times in a day and therefore pees. So, meaning thereby that the concentration of the amniotic fluid, which we call as the solutes, okay, which can be an harbinger sign so as to see for the renal functionings, they are very sort of an accurate, right? Because the amniotic fluid gets changed 2.5 and 3 times every day in utero, right? So today is the first case that probably we are going to talk about. It is called as a partial PUV. Okay, so it is called as a bladder outlet obstruction. जो पेशाब की थैली है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, और उसको जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व हो सकता है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कंप्लीट भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है. जब कंप्लीट होता है तो बेबी इज नॉट एबल टू पी, वो पेशाब नहीं कर पाता है, एंड देयरफॉर द ब्लैडर गेट्स डायलेटेड एंड देयरफॉर वी डू हैव एन एनहाइड्रोमनियस. आसपास बेबी के आसपास पानी की कमी हो जाती है, इसको हम एनहाइड्रोमनियस बोलते हैं, और उसका जो ब्लैडर होता है वो बहुत हद तक भर जाता है, which is called as a complete sort of an posturethral valve, which is usually a normal scenario, and therefore the diagnosis is very straightforward, and therefore what we need to do, it is entirely different issue. Now what we are going to talk about is this: there is a subset called as a partial PUV. पार्शियल पीवी मीनिंग देयर बाय दैट पोस्टीरियर वेल तो है ही है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो पार्शियल. इसका कहने का मतलब ये है कि बेबी इंटरमिटेंटली यूरिनेट कर पाता है, और वो जो एमनोटिक फ्लूइड है बेबी के आसपास वो भी बिल्कुल ठीक है. सो इस तरह जो पार्शियल पीयूवी है वो किस तरह से बिहेव कर सकता है ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स ऑफ प्रेगनेंसी, और वो किडनी की फंक्शनिंग पे कैसे असर डालता है, तो इसी सब के बारे में ये सब बातचीत है. तो मैं दिखा देता हूँ. तो इसको आप ध्यान से देखिए. ये ब्लैडर है, 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी है. सो व्हाट वी कैन सी कि दोनों किडनीज की जो रीनल पेल्विस है वो डायलेटेड है. ओके, एंड लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रीनल पेरेन्काइमा है वो इकोजेनिक है. तो जो पेरेन्काइमा है वो इकोजेनिक है, और यही थोड़ा सा सिनिस्टर हो जाता है. एमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी के पास है वो अभी तक इतना कम नहीं हुआ है, सो प्रोबब्ली वी आर डीलिंग विद अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ एन एमनियोटिक फ्लूइड आउटसाइड. एंड ये इकोजेनिक जो जो रीनल पेरेन्काइमा वो इकोजेनिक है. नाउ द ब्लैडर स्टार्टेड टू सी. ये इकोजेनिक किडनीज है, और रीनल पेरेन्काइमा इकोजेनिक है on both the kidneys. It is there. And then probably we are trying to see the urinary bladder which is partially full. So right, so this is and therefore everybody knows it कि वो PUV किस subset of fetus में होता है. So this is a partial PUV. एंड थोड़ा इसको ध्यान से देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि जो यूरेटर्स हैं वो भी थोड़े से डायलेटेड हैं. सो पार्शियल पीयूवी, बाइलेटरल माइल्ड डायलिटेशन ऑफ द यूरेटर्स, एंड देयरफॉर एन इकोजेनिक किडनीज. जब बेबी सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन में रहता है, जिसको हम पार्शियल पीयूवी बोलते हैं, तो इनकम्प्लीट एप्टिंग ऑफ द ब्लैडर होता है. लेकिन हमने ऐसा देखा है कि इसका जो असर है वो किडनी पे पड़ता है. तो बैक प्रेशर होने की वजह से देर आर सम इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स which gets activated into the fetus, and therefore they create some जो बेबी के जो किडनी की फंक्शनिंग यूनिट होती है उसको ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, उसकी एट्रोफी करा देता है. आसपास के जो फाइब्रोसिस है मेसेंजियम जिसके अंदर वो रहता है वो मेसेंजियल स्क्लेरोसिस करा देता है. इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ऊपर हो जाते हैं, एंड देयरफॉर द रीनल पेरेन्काइमा गेट्स इकोजेनिक. तो ये इकोजेनेसिटी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है. तो इसका ये साइन होता है कि बेबी की जो किडनीज हैं वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं. एंड हाउ डू वी डील विद दिस थिंग?
तो ग्रेजुअली एज वी मूव ऑन फर्दर फ्रॉम 16 हफ्ते ऑनवर्ड्स, सो व्हाट वी विल सी कि 24-26 हफ्ते पे जाके जो लाइकर है वो तकरीबन 8 के आसपास आ जाएगा, विच वी कॉल्ड एज ओलिगोहाइड्रोमनियोस। एंड 28 वीक्स में ऐसा हो सकता है कि बेबी बिल्कुल ही यूरिन ना बना सके और उसकी किडनी functioning उसकी खत्म हो जाए, right? So meaning thereby that gradually what would happen is this, that we can have an oligohydramnios leading to an anhydramnios that can happen at 28 weeks, right? So this is how the partial PUV या partial obstruction can behave. तो वो इन्फ्लेमेशन किडनीज में हो जाती है जिसकी वजह से जो फंक्शनिंग यूनिट है ग्लोमेरुलाई जिसको बोलते हैं उनकी कमी हो जाती है, वो एट्रोफी हो जाती है, और मेसेंजल जो स्क्लेरोसिस है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से रिनल पैरेन्काइमा एकोजेनिक हो जाती है, कॉर्टिकल डिफरेंशिएशन भी कम हो जाती है, लाइकर जो किडनी की फंक्शनिंग यूनिट है या किडनी की जो कंसंट्रेटिंग कैपेसिटी है यूरिन को ब्लड को फिल्टर आउट करके यूरिन बनाने की, वो भी कम हो जाती है। वो इस तरह से दर्शाया जाता है कि बेबी के आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है आने वाले टाइम पे 28 वीक्स में। सो इसको किस तरह से हम देख सकते हैं? इसको इस तरह से देख सकते हैं कि हम एक पानी की जांच कर सकते हैं जिसको हम एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है कि बेबी इस बात को इंश्योर करने की कोशिश करता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो जितना फ्रेश रह सकता है उतना ही फ्रेश होता है। तो तकरीबन इसका इसका माने ये है कि द एमनियोटिक फ्लूइड, बेबी ट्राइज टू कीप द एमनियोटिक फ्लूइड एज फ्रेश एज पॉसिबल। तो वो उसकी जो साइकिल है स्वेलो करके उसको डाइजेस्ट करके किडनी से फिल्टर करके पी करने की, वो 2.5 से 3 टाइम्स होती है इन अ डे। तो मीनिंग देयर बाय दैट दिस टर्नओवर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज 2.5 and 3 times ऑल टुगेदर इन वन डे। ठीक है। सो अगर हम पानी की अगर हम जांच करते हैं जिसमें हम सोडियम क्लोराइड, ऑस्मोलैलिटी और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन होता है, जो कि दोनों ही जो बेबी की ग्लोमेरुलाई होती है इसको पीसीटी और डीसीटी बोलते हैं, दोनों की फंक्शनिंग को हम जांच करके बता सकते हैं कि बेबी की क्या पॉसिबिलिटी है, right? So this is how, what we can do is this, that we can do an amniocentesis and try to look around those fetal urine biochemistry in the amniotic fluid. If they're outrightly abnormal, if they're outrightly abnormal, then probably we can have a fair amount of an idea that probably what do we expect in the future. So this is, we have had few cases, in fact, जिसमें हमने देखा कि वो बेबी की जो EGFR है वो 17% ही रह गई, और आफ्टर द बेबी was born at 30 weeks and all those stuff. So that is how it is. So this is how the partial PUV can behave. It can behave as a ecogenic kidneys and partial dilated and the urinary bladder. So उसको मैनेज करना या उसको उसके बारे में जान लेना, फीटल यूरिन या किडनी के फंक्शनिंग्स को जानना, एमनियोटिक फ्लूइड से हम उसको जान सकते हैं और हम ये पहचान सकते हैं कि आने वाले टाइम पे या मतलब हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव इन फ्यूचर, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।